Hello and welcome to Nico Original News Stories. I am Tarun Karthik. Do remember to watch our bulletin every Monday, Wednesday and Saturday on Nico mobile app, on our YouTube channel and on our Facebook page. Let's start with the coronavirus updates. Coronavirus cases in Andaman and Nicobar Islands are increasing rapidly. In the last 24 hours, 98 COVID-19 positive cases were detected in Andaman and Nicobar Islands. There are 484 active COVID-19 cases in the islands now. Altogether from the start, Andaman Nicobar Islands have witnessed 734 cases, out of which 242 have recovered, with 8 deaths officially reported so far. This bulletin is recorded at 5 pm on 3rd of August 2020, and all the case figures are reported as per the latest update given by Andaman and Nicobar administration at the time of recording this bulletin. Let's move on to the next story. Weekend lockdown was recently introduced in Andaman and Nicobar Islands by an order of the Chief Secretary Andaman and Nicobar administration to prevent the spread of coronavirus. Shops and other businesses units have opened today after a 2-day weekend lockdown. The markets in Port Blair city were very crowded from this morning, with people coming out to buy medicine, groceries and other things. People were also seen queuing up at petrol pumps. Although people were trying their level best to maintain distance from one another, but excessive crowd prevented them from doing so. Let's move on to the next story. To prevent the spread of COVID-19, the District Magistrate South Andaman have notified some additional restrictions for the district. According to the orders of the District Magistrate, all shops and establishments shall be closed in the district from the midnight of 4th of August to the midnight of 11th of August, except for grocery, milk, bakeries, fruit and vegetables, meat, chicken, fish, paint, hardware, electrical, books, stationeries, chemists, pharmacies, and shops catering to agriculture and fisheries, and petrol pumps. The shops and establishments in the exception list have been directed to ensure the social distancing is maintained and respiratory etiquettes are practiced by the customers and the staffs. Let's move on to the next story. Reports are pouring in about the entire Batu Basti being sealed by the authorities. It has been reported that the shops in the entire Batu Basti area has been ordered to be closed. Nico spoke to the chairperson of the Port Blair Municipal Council, who also happens to be the councillor of the area, to know the facts about the situation on the ground at Batu Basti area. नहीं, अभी अभी हमको भी इंफॉर्मेशन मिला है, वो कल ही पेपर में डाला लगता है कंटेनमेंट जोन का। ओके। हाँ, अभी अभी 3 दिन से घर में ही है। जी जी जी। हाँ, और म्यूनिसिपल पे थोड़ा स्टाफ लोग भी थोड़ा तकलीफ है करके ना, सबको थोड़ा रेस्ट लेने बोल के हम भी थोड़ा रेस्ट में। अच्छा, तो सर ये अभी तो सर सारा शॉप्स वगैरह बातू बस्ती में क्लोज करा दिया गया है, तो मतलब क्या वहाँ पे मतलब अभी रेगुलर सप्लाई होगा सर? जो एसेंशियल कमोडिटीज है कंटेनमेंट एरिया में, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको सप्लाई करेगा, पीबीएमसी सप्लाई करेगा सर वहाँ में? पीबीएमसी का इसमें कोई रोल नहीं है। पीबीएमसी कैसे सप्लाई करेगा? वो एडमिनिस्ट्रेशन यही देखना है, वो किसको बोले, किस करने के लिए बोला पता नहीं। अभी हमको भी वहाँ से मार्केट से फोन आया इस तरह बंद करने बोलते हैं करके, क्योंकि ना अभी कल परसों तो एक्चुअली लॉकडाउन भी है, थोड़ा 1-2 दिन तो दुकान रहने से सब सामान लेते थे। जी जी। अभी बंद होएगा तो थोड़ा सा पब्लिक के लिए दिक्कतें आएगी। पता नहीं क्या सुविधा एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, डोर डिलीवरी वगैरह कुछ करने का प्लान किया होगा जी। हमको ज्यादा तो नॉलेज में नहीं है। ओके, अभी कितना केसेस है सर वो एरिया में? कुछ आइडिया है सर आपको अभी? यहाँ में क्लियर नहीं मालूम है, मगर बहुत जन का फीवर है करके सुनने में आया। अच्छा, इसीलिए कंटेनमेंट एरिया मतलब डिक्लेयर किया वहाँ पे, राइट? हाँ जी, ठीक है सर। ये कैरीगढ़ तो वहाँ भी 2-3 केस है बोलता। अभी वो एक तो इस्माइल सर कल ही आज ही हुआ लगता है सुबह के टाइम में। जी जी जी। हाँ, और सऊदी मार्केट में भी 1-2 सुनने में आया है। एग्जैक्ट न्यूज किसी कौन है क्या गए मालूम नहीं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके। Andaman and Nicobar administration has deputed staffs at all places where there is a possibility of crowd gathering, such as vegetable markets, fish markets. The staffs are working to maintain social distancing and temperature of every individual entering the market is checked. Nico team checked the ground reality at the vegetable and fish markets of Chandigarh and also spoke to the people there. Let's hear in their comments. Sir, अभी हम चंडीगढ़ वेजिटेबल मार्केट में हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग का अरेंजमेंट है। तो आपको क्या लगता है ये अरेंजमेंट सफिशिएंट है और
क्या और होना चाहिए और आपको किस तरह का लगा, क्या इसमें कोविड स्प्रेड होने का आपको डर लगता है सर? अभी ऐसा हो गया ना कि सारे समाज में, सारी सोसाइटी में बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है, लोग अपने आप समझने लगे हैं। और यहाँ पुलिस वाले की ड्यूटी अच्छी है, दुकानदार भी लोग समझदार हैं, तुरंत डिस्टेंसिंग बना के रखते हैं। पब्लिक भी समझी हुई है, क्योंकि बचना उनको है, रोग से लड़ना उनको है, सोसाइटी मदद नहीं करेगी। इसलिए हर आदमी सोसाइटी का हर आदमी एकदम जागरूक है और वो बढ़िया से काम कर रहा है कि इससे हम लोग कैसे भी निपटना है। सर चंडीगढ़ फिश मार्केट में आप अभी परचेसिंग के लिए आए हैं, तो आपको किस तरह यहाँ का अरेंजमेंट कैसा लग रहा है? मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग का अरेंजमेंट है तो आपको कैसा लग रहा है? और एडमिनिस्ट्रेशन जो टेम्परेचर भी चेक कर रहा है वेजिटेबल मार्केट में, तो ये सब तैयारी से आपको क्या लगता है यहाँ पे अभी कोविड स्प्रेड होने का डर होगा? नहीं, मेरा जो ख्याल है, जो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप ले रहा है वो जो सही एक कदम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब एक स्टेप से कोविड स्प्रेड धीरे धीरे रिड्यूस होने का भी चांस है। और ये बोलने से हर जगह में ऐसे ही करना है, थर्मल स्कैनिंग भी होना है और सोशल डिस्टेंस भी होना है। सर आप यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी अच्छी बिक्री करने वाले। तो सर आप लोग क्या क्या स्टेप ले रहे हैं? जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है उसके लिए आप लोग क्या क्या स्टेप ले रहे हैं? स्टेप पे ना घर घर के जाके कोरोना टेस्ट कराने से बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों बोले से ना, अभी सबको डाउट लगता है बुखार आने से क्या कोरोना है क्या, ऐसा बोलते हैं। सबको टेस्ट कराने से पॉजिटिव आने से अंदर वो ट्रीटमेंट लेगा, नेगेटिव रहने से वो घर में रहेगा, ऐसा होता है। वही तो चलता है। अभी पूरा बुखार उखार करके सबको लॉकडाउन करता है, हम लोग आने में मुश्किल है, जाने के लिए बहुत मुश्किल है, मच्छी सब सड़ जाता है, सब कुछ होता है। फिर भी हम लोग कंट्रोल करने के लिए तैयार है। क्यों बोले से ना, बीमारी बोले से सबको डर है ना, सब मर जाता है। हम लोग का कंट्रोल करने के लिए तैयार है। फिर भी आप लोग का कोरोना टेस्ट करने से अच्छे है, घर घर जाके ना टेस्ट कराना सबको। तो सर आप लोग अभी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हाँ, और बाकी सब मेंटेन कर रहे हैं? हाँ, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग। Travelers arriving from mainland India and intending to travel to various destinations within the islands are confused about the procedure they have to follow. These travelers allege that there is a lack of clarity in the orders of the administration, and the staff at the airport are also not cooperative. Their queries at the airport is not properly answered, and further the order suggests that the travelers who are not residents of Port Blair and Farragut Sahil have to stay in institutional quarantine for 7 days or until they are tested negative for COVID-19. With rapid COVID-19 testing kits, these travelers are now instantly tested at the airports but are still stamped for home quarantine. They are also not provided with any documentation that they have been tested negative for COVID-19. Nico recently received a phone call of a viewer who spoke to us about his experience in detail. मैं बैंगलोर टू कलकत्ता, देन कलकत्ता टू पोर्ट ब्लेयर ट्रैवल किया। तो मैंने आज 5:40 का एयर इंडिया का फ्लाइट था, तो मैं 7:30 को पहुंच गया पोर्ट ब्लेयर। तो जैसे मैं पोर्ट ब्लेयर में पहुंचा, तो देन व्हाट हैपेंड, लाइक उन लोगों ने मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब जो था वो वेरिफिकेशन किया। देन उन लोगों ने बोला कि आपका कोविड टेस्ट होगा। तो मैंने अपना कोविड टेस्ट करवा लिया। तो कोविड टेस्ट करवा लिया, देन जितना मेरे को, और मैं इंटर आइलैंड से मायाबंदर से हूँ, तो जितना मेरे को पता था कि कुछ नोटिस निकला था कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन देते हैं, मतलब 7 दिन के लिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता तो उतना तक हम लोग को हाफ पे करना पड़ेगा एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल पे हाफ। तो ये कंफर्मेशन मेरे पास था, लाइक प्रिंट आउट था, तो उसके साथ मैं अंडमान आ गया। तो जैसा मैं वहां पहुंचा तो डीसी ऑफिस का एक बंदा था वहां पे, तो उसके पास मैं रीच आउट हुआ। तो उसने बोला कि रंगत, लिटिल अंडमान और निकोबार के लिए 2 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन देते हैं, लेकिन मायाबंदर वालों को कुछ नहीं है, ऐसा बोला। तो लेकिन मैंने उसको बताया कि जब तक मैंने पेपर नोटिस में देखा था तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि ये पर्टिकुलर रीजन के लिए ऐसा है करके जी। तो अभी जब उनसे पूछ रहा हूँ तो उन लोग बोल रहे हैं कि हमको इनके बारे में आइडिया नहीं है। जब डीसी ऑफिस का बंदा ही ऐसा बोल रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई किसी से पूछेंगे तो कोई बताने वाले हैं जी। तो इतना हो गया। उसके बाद मेरा कोविड टेस्ट हुआ, लाइक जी। उसके बाद फिर 15 मिनट में मेरा रिजल्ट आ गया। जी। ओके, एंड उन्होंने बोला यू आर नेगेटिव एंड यू कैन गो। ओके। ओके, अब मैं मायाबंदर का हूँ, अब मेरे रिलेटिव पे हैं, बट मैं रिलेटिव के वहां नहीं जाना चाहता था क्योंकि मेरी वजह से उनको प्रॉब्लम होगा। जी। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, मतलब यहाँ पे तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन देने वाले हैं, तो जैसा भी करके जितना दिन रहेंगे
ऐसा है देन फाइन। तो जब मैंने उन लोग से बात किया तो वो यहाँ से वहाँ एक को दूसरे को बोल रहा था। फिर फाइनली किसी मतलब आई डोंट नो दैट पर्सन, तो उनको मैंने अपना इश्यू बताया कि ऐसा इश्यू है और मेरे को मतलब स्टैंप लगाए हैं कि 7 डेज होम क्वारंटाइन करके। तो अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं बाहर नहीं जाऊँ। तो मैंने वो DHS वाला था उसको मैंने बोला कि उसने मेरे को बोला कि यू आर फाइन टू ट्रैवल करके। तो मैंने उनको बोला चलो फाइन टू ट्रैवल है तो आई नीड सम प्रूफ, कि चलो प्रूफ होगा तो मैं उनको टिकट मिल जाता है, आई कैन शो राइट, क्योंकि अभी ATR नहीं चल रहा है तो बोर्ड वालों को दिखाना होगा ओके आई एम फ्री टू ट्रैवल। जब मैंने उनको बोला तो वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ अभी कैसा देंगे, आपको DHS ऑफिस आना है 5 बजे ऐसा। अब अभी अगर सोचिए अभी हम अगर आज तो नेगेटिव आ गया, आई एम नॉट श्योर कि बाकी 7 दिन में भीतर शायद आई विल बी मे बी पॉजिटिव, आई एम नॉट श्योर दैट। तो अगर मैं घूमने जा रहा हूँ और कोई मेरे जैसे किसी को प्रॉब्लम होता है तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट। तो मेरी गलती हुई ना कि होम क्वारंटाइन तुमको बोला है एंड यू आर नॉट डूइंग दैट। सही बात है। तो ये मेरी गलती हुई, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। तो इसीलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि 2 दिन का रिक्वेस्ट मतलब इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन दीजिए, मैं हाफ नहीं फुल पे करने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन वो ऐसा बोल रहे हैं कि दिस इज लाइक पैंडेमिक, लाइक उन लोगों के पास भी कुछ आइडिया नहीं है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, उन लोग मतलब ऐसा है कि उन लोग को भी आइडिया नहीं कि नेक्स्ट उनको क्या करना है नहीं करना है। तो अभी वहां पे DC ऑफिस के बंदा था, उसने मेरे को 4 कॉन्टेक्ट दिए होटल का। तो एक तो कीस होटल था और 2 नया गांव पे था और एक हैडो पे था। तो कीस होटल पे मैंने फोन किया, देन दे टोल्ड लाइक एक रूम खाली है, लेकिन मेरे साथ एक लड़की भी थी, वो भी मायाबंदर की है। देन एक रूम है एंड शी इज नॉट माई रिलेटिव, लाइक शी इज माई जस्ट फ्रेंड, सो वी कांट शेयर द रूम। तो ये बात था। तो मैंने कीस होटल वालों को बताया कि अगर आपके पास 2 रूम होगा तो कैसे भी करके अरेंज करिए। तो उन्होंने पहले बोला नहीं है, क्योंकि उन लोगों का भी कुछ प्रोसीजर होता है कि सैनिटाइजन करना है, मतलब एक जाने के बाद की 24 आवर्स मतलब सैनिटाइजन करना है, उसके बाद ही रूम दे सकते करके। तो अभी उनके तरफ से भी रूम श्योर नहीं था। तो फिर उस दौरान मैंने अपने दोस्त लोगों को फोन किया, मतलब अभी ऑप्शन नहीं बचा है। हम सोचे कि वो लड़की को चलो ठीक है रूम दे देंगे, मैं अपने दोस्त के वहां चला जाऊंगा। लेकिन ये भी उनको फोन करके बोले तो दे आर ऑल्सो लाइक कि नहीं, यू आर नॉट लाइक इफ यू कम टू माई होम देन अगल बगल वाले क्या सोचेंगे, वो वाली बात है। और वो वर्क कर रहा है तो उसको होम क्वारंटाइन जाना पड़ेगा, तो मेरी तरफ से उसको प्रॉब्लम होगा। तो उन लोग भी अभी उनको भी तकलीफ नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज हो गया। तो फिर मैंने बाकी बाजार में कुछ होटल है, मतलब वहां पे मैंने कांटेक्ट किया। उन लोग भी मतलब ओके बोले हैं आने के लिए। बट मेन थिंग क्या था, आज लॉकडाउन था और ना एक गाड़ी चल रहा है ना कुछ चल रहा है। तो अभी मैं बाजार जाऊं तो कैसे? अभी ये थिंग हो गया। अभी क्या है बोर्ड का शेड्यूल क्या है कि मायाबंदर टू डिग्रीपुर 3 तारीख को बोट है MV कोरल क्वीन, 31 को उसका टिकट दिया। तो मेरा इंफॉर्मेशन इतना है कि मतलब 50% पैसेंजर्स को लेते हैं। तो वो तो शायद पूरा हो गया है शायद, तो टिकट अवेलेबल नहीं है जितना मेरे को पता है। तो और एक बोट है 5 तारीख को, तो उसका टिकट कल देगा। अभी मेरे पास कुछ डेटा नहीं है, मतलब किसको मैं अपना ID कार्ड दूं, कौन जगह टिकट लेगा, क्योंकि मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी गलती है, अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल टू आंसर। तो अभी ये बात है, अगर कल का मेरा मतलब कुछ हो सकता है, क्योंकि DHS वाले बोले हैं कि यू आर फाइन टू ट्रैवल। तो मैं अपना घर जाके 7 डेज में 14 डेज होम क्वारंटाइन करने के लिए मैं रेडी हूँ। क्योंकि अभी कीस होटल में मेरे को रूम मिल गया है, पर डे आई एम पेइंग 1000 रुपीज। ओके, अभी आप सोचिए अगर मेरे को 3 तारीख कल का बोट का टिकट नहीं मिलता है, सो 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त को अगर 5 का टिकट मिलता है तो लाइक 4 के पे करना पड़ेगा मेरे को। अगर 5 का टिकट मिलता है, अगर वो भी श्योर नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है कि मतलब मेरे डॉक्यूमेंटेशन किसको देना है, कौन जाके टिकट लेगा, कहाँ से होगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब बात है।
तो सर आपके उसमें अभी भी होम क्वारंटाइन का स्टैंप लगा हुआ है, राइट? स्टैम्प तो मिट गया। जी नहीं, ये क्योंकि- एक्चुअली मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको होम क्वारंटाइन का स्टैंप लगाया था, आपका टेस्ट हुआ था, नेगेटिव आप आए थे रैपिड हाँ। टेस्ट पे, तो उसके बाद हाँ। डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या बोला उन्होंने? कोई डॉक्यूमेंटेशन देंगे कि आप टेस्टेड नेगेटिव टेस्ट हुए हैं और बाकी हाँ, तो वही मैं पूछ रहा था, वो शायद DHS वाले थे, वही उनसे मैं पूछ रहा था कि अभी मैं नेगेटिव आया तो मेरे को कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ना, कि मैं ट्रेवल करूँ तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि मेरे को घर जाना है, आई कैन शो ओके यू आर टेस्टेड नेगेटिव, यू कैन नॉट ट्रेवल। बट ऐसा कुछ उन लोग से पूछे तो उन लोग बोल रहे हैं कि आप DHS ऑफिस आके आप लीजिए करके। अब ये तो सही नहीं है ना बात, कि मैं कहीं जाऊं कहीं से पूछूं, तो दैट्स नॉट करेक्ट। जी एज ए इंडिविजुअल आई एम थिंकिंग इट्स नॉट करेक्ट। That's all in today's news bulletin. Download the Nico app, subscribe to our YouTube channel, and follow our Facebook page to stay updated with the latest Andaman and Nicobar Island news stories.